you are a Bitcoin evangelist, right? How, like, people don't become this by just accident or something. So, like, how did you come into this? What's your journey? So, you have been recommending this book, The Bitcoin Standard. Like, how strongly do you recommend it, and like, what are the benefits? 110%. If you are a Bitcoiner, Right. if you want to get into crypto, if you Right. haven't read that book, don't get into it. मैं बता रहा हूँ, you will be able to withdraw salary in Bitcoin. It will happen. Very, very, very much happen. हमारे पापा ने Bitcoin लिया हुआ था, तो आज मैं आराम से बैठा हूँ. That's Right. hard. That's what crypto wala stands for. Right. Crypto wala stands for a movement to educate every single citizen of India to make them crypto educated, crypto literate. I would say. Exactly. So that's the aim. टोटल क्रिप्टो कितना है? 1.5 करोड़ क्रिप्टो करेंसीज है. अब वो क्या है? स्कैम होने वाले, मतलब सब कुछ जीरो होने वाला. जहां बिटकॉइन को लोग अभी भी स्कैम बोल रहे हैं, वहां पे ट्रम्प खरीद रहा है, यूएस गवर्नमेंट ने बिटकॉइन स्ट्रेटेजी रिजर्व बाय कर चुकी है. So बिटकॉइन इज डिसेंट्रलाइज्ड. इन्वेस्ट इन समथिंग व्हिच इज हैज एक्चुअल वैल्यू. गवर्नमेंट्स बाय कर रहे हैं. स्विट्जरलैंड, यूएई, दुबई. What are the major reasons behind India lagging behind towards this adoption? Like, is it that taxation problem, that 30% thing, or what? और पहले तो हैंग देम और I repeat, uncensored. ठीक है. I'm not here to say. I'm here to make some impact. I'm here to make an history. आप मुझे पैसों से नहीं खरीद सकते. Morning person or night owl? For me, Yeah. night out. Hey everyone, welcome to Token Talks with Altcoiners. I'm your host Vidhi, and we have a very special guest with us today who's been at the forefront of Bitcoin education and advocacy in India and around. And we have Mr. Abrar Khan, the crypto wala, who lives and breathes Bitcoin. Am I right? You're right. Welcome, Abrar. Please welcome to the show, and thank you so much for being here. Thank you so much, Vidhi, for having me here. So, like, straight away jumping into this questionnaire and education and everything, I had like to ask you, like, you are a Bitcoin evangelist, right? How, like, people don't become this by just accident or something. So, like, how did you come into this? What's your journey? So I was a stock trader before. Okay. I was into stock trading and professional trader. But then 2014, I came across a Bloomberg table. It used to be a currency table in Right. Bloomberg. And there I saw Bitcoin on the top and the dollar was on number 3rd. That caught my attention, saying that what is Bitcoin? I started reading about it. In 2015, I think maybe January or February, I started buying Bitcoin. Okay. At the same time, I was buying it, but then I started reading about getting into details. Right. And it's just not about the Bitcoin. I started reading everything in detail about the finance, what is money, what is barter system, how this taxation came into existence, how this Federal Reserve Bank, Fed came into existence, how the government started printing money, Right. what is debit card, credit cards, net banking, everything. Like the whole financial system. And I started asking there was a question like, I used to ask myself, what is actual money? And then when 2016, 17, I got into crypto 100%, sold my stocks, everything, and got Okay. into crypto 16 end में. तो मेरे को I realized कि यार यही है जो एक financial system को revolutionize कर सकता है, change Exactly. कर सकता है. Not only in the form of investment, but the actual definition of money. Bitcoin हर वो boxes tick करता है जो actual money की होनी चाहिए, जो कोई print नहीं कर रहा है, कोई एक centralized system, institution या government नहीं है जो उसको print कर रही है. Everyone can verify. You can go on the blockchain, you can check everything. It's supply cap है. Same time, you don't need permission to send money, send Bitcoin. Exactly. But today, if you want to send money to anyone, the governments ask so many questions. Exactly. Are you being taxed? तो बहुत सारे questions के answers मिले. And वहाँ पे मुझे लगा यार, पहले initially मैं crypto में घुसा इसलिए था क्योंकि I just wanted to make money. But 16, 17 में, this is like, I want to revolutionize the financial system. और वहाँ पे मुझे लगा यार मुझे कुछ एक impactful एक history create करनी है. Maybe a part, small part, जो मैं कुछ कर पाऊँ financial system के लिए, change करने के लिए. वहाँ से मेरी journey start हुई. So, like, how do you compare it with the traditional banking system and everything? It's very easy. Like if you go to if you have like 10 crores in the bank, Right. go to the bank and say, I want to transfer that to Abrar. Right. And then they will be like, Vidhi, why? And Why? who's Abrar Exactly. Khan? And when it's my money. When it's your money. So the moment you deposit the money into the bank, you lose the control. Exactly. And now it's your money, but they control it. So they will start questioning you, who's Abrar Khan, why you want to send it, have you filed the ITR returns and all. KYC and KYC, everything. Everything.
then there are so many time limitations. Right. The banks open at 10 and it's closed at 5. Then you cannot transfer on Sunday and Saturday. You cannot transfer in midnight. Just imagine you want to transfer money to abroad at 3 o'clock in the morning, 3 a.m., which is possible now, but just imagine 2 years or 3 years down to the line, you need to go to the bank, Right, exactly. fill karo and all. And the problem is the freedom. It's your money and you are paid the taxes. You are Exactly. paid the taxes. So अब मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए. मैं 10 करोड़ या मैं 100 करोड़ रुपए पे टैक्स दे चुका हूँ. This is my money. I should be able to send to anyone, not only in India, across the world, True. which is not possible in the financial system, the existing financial system. At the same time, they charge you brokerage. आपका ही पैसा किसी और को देके they charge interest from them and they give you certain percent in a form of fixed deposit case में 6% आपको दे देंगे but दूसरे को आपका 12% चार्ज करेंगे. तो banking is a business. Exactly. In the form of Bitcoin, it's so easy. You can send an email a person sitting in India to US exactly the same way you can send Bitcoin to a person who's sitting in US without anyone's permission, borderless. There's no third party involved. At the same time, वो verify कर सकते हो हर कोई, not only you and me, जिसने transaction complete किया, everyone who's on the network, and you can go and check on the Google. So all the बैंकिंग का जो बिजनेस था वो बिटकॉइन, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, पोस्टल इंडस्ट्री को जैसे ईमेल ने चेंज कर दिया. देयर इज नो पोस्टल इंडस्ट्री. माय फादर यूज्ड टू बी इन सऊदी. ही यूज्ड टू राइट लेटर्स टू माय मॉम. Okay. अब कौन सा लेटर्स? इट्स लाइक ईमेल, राइट? व्हाट्सएप, राइट? सो आप एक डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हो. मैं वही ट्रेडिशनल बिजनेसेस करूँगा, वही ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम फॉलो करूँगा, वो अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे हम ग्लोबलाइजेशन के तौर पे आगे जा रहे हैं. हमें अभी क्या चाहिए? फास्ट, सिक्योर एंड फ्रीडम. True. सेम टाइम यू नीड फास्ट ट्रांजैक्शन. व्हाई डू वी यूज यूपीआई? हम कैश से क्यों हट गए? क्योंकि इट्स फास्ट, Faster, Safe है. convenient है, सेफ है. safe. एट द सेम टाइम फ्रीडम नहीं है वहाँ पे. आप 1 लाख की ट्रांजैक्शन कर सकते हो. Exactly. अब वहाँ पे बिटकॉइन प्ले अ गेम. एट द सेम टाइम इट्स जस्ट अ मनी, एंड मनी इज एन INR, money is a dollar, money is a dirhams, and money is Bitcoin. Who has more freedom? I don't need permission to transfer like $100 billion, which I don't have, but I wish I had, to you straight away without anyone's permission. I'm in Dubai or India and I'm sending to US, or you are in Japan. Simple. So like people know you for being crypto wala. So how did this name strike your mind? Why should you keep it as crypto wala and not something else? Like you're talking about Bitcoin. Why not Bitcoin wala or something? Why only crypto wala? Why did you choose it specifically? So firstly यार, मैं मार्केट जब I was a crypto trader initially, तो मैंने देखा मार्केट में काफ़ी गैप है. Right. तो हम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, एक्सचेंज लॉन्च कर रहे हैं. Okay. तो मैंने देखा यार इजी प्रोनाउंसिएबल क्या है. तो मेरा मानना है कि नाम ऐसा होना चाहिए, नाम में ही 50% मार्केटिंग होनी चाहिए. True. Okay, I don't have to market my name. कि if you know what is crypto wala, if you hear crypto wala, what is gonna sound? He does something related to crypto. तो मेरी 50% की मार्केटिंग हो चुकी है. Crypto and wala is like डब्बा वाला, बिरयानी वाला, चाय वाला. We have this thing, right? तो मैंने देखा Easy for people to remember. easy to people to remember, right? और easy मार्केटिंग हो सकती है. Right. तो क्रिप्टो वाला एक वर्ड में आ जाता है, एक सांस में बोल सकते हो. एट द सेम टाइम राइम हो जाता है. Why not Bitcoin wala? We have a Bitcoin wala. We have mining wala as well. Okay. Okay, yeah, I'm being honest. Okay. So Bitcoin wala is a company. We are raising funds and buying Bitcoin on the balance sheet. We are trying to acquire a company in stock market soon. And we will be doing exactly what Strategy does, which is the biggest company in the world. Just buy Bitcoin, raise funds and buy Bitcoin. So Bitcoin wala है. Crypto वाला में हम exchange ला रहे हैं. Bitcoin वाला में we raise funds and just buy Bitcoin. Okay. And mining वाला में we will be getting into mining, Bitcoin mining. Right. Okay. तो क्रिप्टो वाला इज लाइक हम एक्सचेंज ला रहे हैं, तो उसमें हम क्रिप्टो पेमेंट्स वगैरह कुछ करना चाह रहे हैं. वो एस्पेक्ट में हमने क्रिप्टो वाला नाम रखा है. बट इट्स गोना बी वाला इन सो मेनी डिफरेंट वे. So like what was the first interaction with Bitcoin? How did you come into discovering it? As I told you, like it was like the currency table, and then there were so many flaws in the current financial market, which So, I like, thought. Yeah. Did it just make you go into this thing that wait, this isn't just internet money, this is something bigger than that? Exactly. People call it as internet money. Right. For me, I call it as an actual hard money. It's not an Okay. internet money. Okay. There could be what is digital number. It's an internet money as well. Okay, but it's not a hard money. What do I mean by hard money? आपके पास जो 500 रुपए का जो नोट है ना,
it takes only 2 rupees 13 paisa to print that 500 रुपए का नोट. You getting what I'm saying? So 2 रुपए लग रहे हैं 500 रुपए नोट का प्रिंट करने के लिए. Right. It's not hard money. आपने Right. 2 रुपए स्पेंड किया. हाँ, To mine gold आपको बहुत सारा पैसा लगता है. Exactly. तो they say 1/3 of money, you need 1/3 of money has to put in for infrastructure, mining का आपका machines के लिए, Right. manpower के लिए, to make another 2/3. So if you want to make 1 crore, 30 lakh rupees invest हो जाते हैं to make another 60-70 lakh rupees in gold. Bitcoin में भी same है. You need to put a lot of electricity, mining machines आपको खरीदने पड़ेंगे. Right. तो it's a hard money. 2 रुपए से 500 रुपए नहीं बना रहे. आपको एटलीस्ट 150 रुपए लगाने पड़ेंगे 500 रुपए बनाने के लिए. True. That way. So that definition of me is like यार हाँ. तो मैंने कंपेयर किया कि what are the hard money and sound money, which is very much I tell everyone to spend at least you buy a book called Bitcoin Standard. Okay, If you yeah, wanna- I was going to mention about it. Like, I have been listening you, so you have been recommending this book, The Bitcoin Standard. Like, how strongly do you recommend it, and like, what are the benefits? 110%. If you are a Bitcoiner, Right. if you want to get into crypto, if you Right. haven't read that book, don't get into it. Okay. It talks about everything like gold standard, how the money used to be backed by gold, and now we have fiat money. The government can print as much as Right. they money Right. we want. In future, the money will be backed by Bitcoin. Will be on Bitcoin standard. What do you mean by gold standard? The money was backed by gold. And what is Bitcoin standard? It talks about coming everything back to again, but not on gold now, on Bitcoin. So the more Right. government has Bitcoin, that much money they can print. If that is the thing, I'm ready to accept government money. If not, just replace it, let the Bitcoin be there, and let's do the transaction and everything in Bitcoin, and you can live your life, which you can do it as of today. 60-70 countries में you can live your entire life from सुबह से लेके शाम तक, Okay. eating, drinking, buying a car, paying for electricity bill, Right. everything with Bitcoin. Even buying the flight tickets, Emirates में you can buy flight tickets now. You can pay so many stuff in Dubai, everything in Dubai with Bitcoin. Soon, मैं बता रहा हूँ, you will be able to withdraw salary in Bitcoin. It will happen, very, very much happen, right? That's actually kind of a start of that revolution kind Yeah. of thing, right? So, like, what do you understand by the sound money thing? Like, the term sound money. Sound money is a hard money, which is what is the इतने सारे पैसे हैं. Just imagine we have INR, we have Zimbabwe currency, we have peso, we have Right. dollar, we have euro. Right. Now Zimbabwean currency is gone. I have that currency. खत्म हो गई है. Hyperinflation. Peso खत्म हो चुका है. वेनेजुएला की जो करेंसी है वो खत्म हो चुकी है. खत्म होने का मतलब Right. ये है कि गवर्नमेंट इतना प्रिंट कर चुका है कि लाखों करोड़ों रुपए से एक ब्रेड भी आप बाय नहीं कर सकते. Okay. It's gone. So no, that's not hard money. Hard money, very hard to mine, to print, to bring to existence. Right. So now you compare what is hard money. Is gold hard money? Yes, it is. But can you buy something with gold? No. It's a store of value. It's like an investment. Right. आप उसके Traditional method of investment. traditional method of and just investment. Right. But you cannot buy something. If I want to, I say, okay, Vidhi, can I just buy a home in Dubai with gold? You have to liquidate that gold in dirhams and then buy a home. Why Right. do I do that if I can do that with Bitcoin? So gold था, but अब Bitcoin हो चुका है, which is hard money, hard to bring it to existence. Right. Mine. Right. At the same time, it is rare. It has a lot of properties. It's limited. It has a supply cap. Exactly. There are so many different definition of hard money. I mean, we're just covering the ऊपर से. तो अभी अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको हम काम कर रहे हैं एंड देन आई से कि आपको पे करना है, मतलब इफ आई हैव टू टेक द सैलरी, Right. तो आई ऑलवेज से दिस कि एक ज़माने में 1947 में $1 यूज्ड टू बी 1 INR. अभी 1 INR इज 84 रुपीज. Exactly. सो दिस इज नॉट हार्ड मनी. इन्फ्लेशन खाया जा रहा है, क्या करोगे इसका? तो नाउ हार्ड मनी इज समथिंग जो अपना परचेसिंग पावर भी मेंटेन रख रहा है. Right. लुक एट दिस वे, बिटकॉइन एक टाइम पे वाज $1, आज $1,20,000 हो चुका है. लेट्स नॉट गेट इनटू प्राइस, बट एक टाइम पे 2015 में शायद आप एक बिटकॉइन से एक आईफोन ले सकते थे. आज 2025 में आप एक बिटकॉइन से घर ले पाओगे 3 BHK का. 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ का Right. 2-3 BHK घर आ I've जाएगा. been watching those memes. काश मेरे ancestors ने ले लिया होता Bitcoin and everything like that. या हम नहीं, मेरे बच्चे, आप लोगों के हाँ. बच्चे, लोगों के बच्चे बोलेंगे Right.
कि अगर मेरे पापा ने बिटकॉइन लिया होता तो जैसे हमारे बोलते कि यार मेरे दादा ने पापा ने रियल एस्टेट लिया होता, जमीन ली होती, एग्जैक्टली तो मैं शायद आज बहुत अमीर होता। बहुत अमीर होता। तो हमारे आगे आने वाली जनरेशन ये बोलेगी कि यार कम से कम मेरी है ना, हमारे पापा ने बिटकॉइन लिया होता तो आज मैं आराम से बैठा होता। दैट्स हार्ड मनी, दैट्स हार्ड मनी, विच इज कि आपकी परचेसिंग पावर लूज नहीं कर रही है, बढ़ रही है ओवर द टाइम, आपकी बढ़ रही है। I think that is because of that gap, that information gap people had. Like आज भी हम सुनते हैं कि बिटकॉइन स्कैम है, ये क्या है, हम फ्रॉड हो जाएगा. Like I was having this conversation a month ago with my gym trainer. So I started working with altcoiners and he was like, what company is this and everything. So I told him that it's Web3, it's crypto and everything. So he was like, so are you trading something? Like what are you guys doing or something? कुछ ऐसा स्कैम तो नहीं करते हो, ऐसा करते हैं. I was like, what are you saying? I was like, you're living in 2025, you're talking blockchain and everything it has. Please read about it, please have some information about it. That is the gap. Yep. Actually, like still I believe as a student I get to know about these topics like blockchain in my graduation and not when I was in school. जी. And that is something I find it very, like, you know, I have been lagged behind. Uh-huh. I'm not an early adopter, obviously I'm not an early adopter, but I can still be. I'm just 21. You are. If you are in Yeah. 2025 and Right. you're talking about crypto, Right. and we are doing the podcast, I'm telling you, you're in less than of like 2%, early Right. 2% Exactly. of the world who are into crypto and who actually understands crypto. 99% people, and that 2% maybe, 99% people doesn't understand crypto. Right. They just want to do trading and make money out of it, but they don't understand the intrinsic value of crypto. Exactly. How the financial system is changing. True. And as you said, education plays a big part. That's what CryptoWala does. We do a 100% free education. We don't have any paid channels, no subscription, Right. no signals, no course selling, nothing. We don't monetize our education. We don't ask for a single penny from anyone. We burn our own money. You have colleges, bring us, tell us. We'll come to your colleges. We will put our money to do seminars and educate people. Okay. That's what CryptoWala stands for. Right. CryptoWala stands for a moment to educate every single citizen of India to make them crypto educated, crypto literate. I would say. Exactly. So that's the aim. I think that's very important because we have been studying history, we have been studying geopolitics and everything, Geography. like what not. But there has been no information, no knowledge about finance. Like Yeah. I was introduced to debit cards and credit cards and everything sort of things when I was in 10th standard. Like I was like, क्या है ये डेबिट कार्ड, क्या है क्रेडिट कार्ड, क्या है, लाइक ये मुझे पहले से पता होना चाहिए, राइट? Scam है. स्कैम नहीं है, आई मीन नो इट्स नॉट स्कैम, बिकॉज मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि ये चीज़ स्कैम, लाइक दे न्यू कि ये स्कैम नहीं है. लाइक डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स आर नॉट स्कैम. स्टिल लाइक आज भी लोग क्रेडिट कार्ड्स लेने से हेजिटेट करते हैं. आई हैव सीन दैट. So why is it? Like why do you think is it? I'll tell you why did I just say the scam? Because it's backed by the fiat currency. Right. And the fiat currency is nothing but the government is printing as much as they want. It's unlimited printing. और वो करेंसी आप स्पेंड कर रहे हो, और वो करेंसी आप सेव कर रहे हो. Right. Saving for your pensions, for your children's education Exactly. and everything. When they can print it, why you want to save it? I think that is because they're choosing a safer method so that कोई scam ना हो जाए. Yeah, but then just imagine it's all about the adoption. हाँ. एक टाइम पे लोगों को कुछ नहीं पता था, जैसे यूपीआई की मैं बात कर रहा Exactly. हूँ. यूपीआई के नहीं पता था. 2000 कोविड के बाद ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ गया, बट 15-16 में आ गया था. एक टाइम पे कोई नहीं लेता था यूपीआई के पेमेंट्स. अभी तो आप बाहर वेंडर पे चाय पी लो, स्कैन करता. अब उसको नहीं पता टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है. हाँ, right. उसको नहीं पता. वो बस अपना QR दे देगा, भैया इस पे कर दो. उसको बस ये पता है कि मेरे पास आ जाएंगे पैसे. Exactly. तो बिटकॉइन का भी अभी वैसे ही क्रेज है. इनिशियली पीपल यूज्ड टू से कि यार स्कैम है, फ्रॉड है. स्कैम और फ्रॉड इसलिए है, वो इन्फ्लुएंसर्स है, जो सारे चोर इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं. सॉरी फॉर माय लैंग्वेज एंड ऑल. व्हाई डू आई से दैट? दे प्रमोट अदर स्टफ which is not gonna be there. Exactly. 99.99% of crypto is gonna die. They don't have any value. Only I would say top 20 or top 30 crypto has a real intrinsic value as of today. नीचे के कुछ होंगे बट शायद फ्यूचर में वो प्रूव हो पाए, अभी नहीं है. तो मैं सिर्फ 30-40 क्रिप्टो बचे हुए हैं जिसकी एक्चुअल वैल्यू है. टोटल क्रिप्टो कितना है? 1.5 करोड़ क्रिप्टो करेंसीज है. अब वो क्या है? स्कैम होने वाले, मतलब सब कुछ जीरो होने वाला है. जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ये चीज इन लोगों तक प्रमोट कर रहे हैं.
प्रमोट करने की वजह से लोगों को पैसा डूब जाता है Exactly. और ओवरऑल क्रिप्टो को ब्लेम किया जाता है। ब्लेम किया जाता है। जहां बिटकॉइन को लोग अभी भी स्कैम बोल रहे हैं, वहां पे ट्रम्प खरीद रहा है, यूएस गवर्नमेंट ने बिटकॉइन स्ट्रैटेजी They're रिजर्व बाय having कर their चुकी है। own coins as well. कॉइन है वो तो मेम हाँ, कॉइन है चलो, उसका, that is a different thing. That's a different thing. But at But least they are doing something towards exactly. it, अब right? मैं ट्रम्प की कॉइन की बात करूं, आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद, इट्स अ स्कैम कॉइन। एट द एंड ऑफ द डे इट्स गोना स्कैम। लिब्रा was a coin issued by the president of Argentina. Right. President of Argentina, just imagine, वो क्रैश हो गया। जिम्बाब्वे के ना प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया, क्रैश हो गया। Right. ट्रम्प की वाइफ का मिलियनियर कॉइन क्रैश हो चुका है। ट्रम्प कॉइन भी इवेंचुअली क्रैश होगा, बट बिटकॉइन नहीं होगा, क्योंकि ट्रम्प कॉइन ट्रम्प की कंपनी चलाती है, ज्यादा 80% होल्ड करती है। बिटकॉइन ना ट्रम्प होल्ड कर, बाय कर सकता है, Right. कंट्रोल नहीं कर Control नहीं कर सकता। आप उसको चला नहीं सकते। सो बिटकॉइन इज डिसेंट्रलाइज्ड। इन्वेस्ट इन समथिंग व्हिच इज हैज एक्चुअल वैल्यू। गवर्नमेंट्स बाय कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड, यूएई, दुबई, अपना यूएसए, जापान, इतने बड़े कंपनीज बिटकॉइन बाय कर रहे हैं। एंड पीपल वांट्स टू बाय पेपे, शिबा इनू, ऑल ऑफ दैट बाय कॉइन। व्हाई? एंड देन यू कैन गेट स्कैम। और ओवरऑल आप फिर बिटकॉइन क्रिप्टो को स्कैम बोल रहे हो। Right. अगर आप उसके रियल इसमें से निकालोगे, आप रियल जो यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स हैं उस पे आप इन्वेस्ट करोगे, इट्स नॉट अ स्कैम भाई। इट्स प्रूवन। गवर्नमेंट रुका के थक गए, कुछ नहीं हो पाया, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। $1 से 1,20,000 की जर्नी, और 2030 में 1 मिलियन की जर्नी, और 2045 में 10 मिलियन की जर्नी ऐसी नहीं होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू है। अपने आप को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, राइट लोगों को फॉलो करना बहुत जरूरी है, बुक्स पढ़ना, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। So why do you think, like, what are the major reasons behind India lagging behind towards this adoption? Like, is it that taxation problem, that 30% thing, or what? अगर मैं गवर्नमेंट टर्म्स में पूछ रहे हो या आप अडॉप्टर्स की, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हो? Retail investors, obviously. ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर्स, टैक्सेशन। अब जितने भी लोग हैं, एक तो दुबई में हो जाते हैं जो क्रिप्टो। Exactly. Like, whenever we talk about it, it is more specific to other countries. Yep. And India is so behind it that I don't think so in the next 50 years also we'll be at that pace. Do you think? 50 तो मैं बहुत ज़्यादा हो गया, मैं उतना तो प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ अगले 2-3 साल हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट ईयर तक हमें एक बहुत अच्छा सा रेगुलेशन बिल आएगा। Okay. हमारा एफआई में हम थोड़ी सी मीटिंग्स होते रहते हैं, Okay. तो मेरे को So- पता है कि गवर्नमेंट्स के कैसे पॉलिसीज होते हैं। ऑब्वियसली इंडिया हम स्लो काम करते हैं, ठीक है। वी आर नॉट यूएस, सिंगापुर, Right. दुबई और स्विट्जरलैंड, Right. जो हम जापान अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, वो इनोवेशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड दे ऑलवेज वर्क ऑन ट्रायल एंड एरर, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। गलती हो। इंडिया होता है सब लोगों के पास प्रूव हो जाए सही है, देन वी फॉलो, वी डोंट लीड, वी ऑलवेज फॉलो। Right. रिटेल में जो आपने पूछा, रिटेल में द प्रॉब्लम इज 30% टैक्स, 1% टीडीएस, एंड देन लॉसेस सेट ऑफ नहीं कर सकते। जो रेगुलेशंस है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, इसके लिए लोग सिंगापुर, दुबई वगैरह चले जाते हैं। Exactly. बट इंडियन गवर्नमेंट इसका रेगुलेशन कम करेगी, क्योंकि करना ही पड़ेगा, वरना हम विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सारे कंट्रीज आगे चले जाएंगे और हम पीछे हो जाएंगे। एंड नाउ वी आर नॉट लिविंग इन इंडिया जो पुरानी तरीके से काम करता था, वी आर लिविंग इन एग्रेसिव इंडिया। थोड़ा सा स्लो है, बट आपको रेगुलेशंस बहुत जल्दी मिलेगा। टैक्सेशन मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट के लेवल पे हो जाएगा, जहाँ पे अब रिटेलर्स को और बिजनेसेस को थोड़े प्रमोशंस मिलने की कोशिश होगी। आई टेल यू, इंडिया इज नंबर 1 इन वॉलेट क्रिप्टो अडॉप्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड। टैक्सेशन होने के बाद भी Is it so? नंबर 1 इन Okay. क्रिप्टो अडॉप्शन, Okay. 2 साल से, Okay. 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर से। क्योंकि हम वी आर 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़ लोग, बहुत बड़ा मार्केट है, Right. ठीक है। So, like, what are the best practical methods to onboard the next billion people into this? यूसेज बिटकॉइन इज नॉट जस्ट फॉर ट्रेडिंग। Right. यूटिलिटी पे, अगर जब क्रिप्टो पे यूटिलिटी पे काम होगा, ये अडॉप्शन जो आज 7% की बात करें इंडिया में हम, ये सीधे 30-40% पे हो जाएगा। जैसे इमेजिन आप बिटकॉइन को ट्रेड कर रहे हो अभी बस, बट मैं होल्ड करके मैं खरीद सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, कुछ Right. कर सकता हूँ, अपना घर खरीद सकता हूँ, कार खरीद सकता हूँ। तो कितने लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, होल्ड Exactly. करना शुरू करेंगे, वो Right. अडॉप्शन लेवल नेक्स्ट लेवल आएगा। एंड बिटकॉइन इज नॉट फॉर ट्रेडिंग, इट इज फॉर मेंट ऑफ फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, फॉर स्टोर ऑफ वैल्यू, आप उससे कुछ चीज़ें खरीद पाओ। Right. तो जो यूटिलिटी जब स्टार्ट होगी, उसका यूज केस जब स्टार्ट होगा, तो आपको एक मेजर अडॉप्शन दिखेगा। एंड वी आर स्टिल अर्ली, यू आर स्टिल अर्ली, आई एम Right. स्टिल अर्ली, एंड एवरीवन हु इज लिसनिंग दिस, दे आर स्टिल अर्ली। 1 करोड़ पहुंच गया मतलब कुछ नहीं है। जब 10 करोड़ हो जाएगा ना, हम जब 1 लाख पे, मैं 70-80 हज़ार में मैं इन्वेस्ट किया था, तब से इन्वेस्ट किया, तब बोलते थे लोग 1 लाख ही पहुंचा बहुत बड़ी बात है। 1 करोड़ तो पहुंच ही नहीं सकता, पहुंच गया।
अब लोग बोल रहे हैं 10 करोड़ नहीं पहुंचेगा, तभी पहुंच जाएगा। जाएगा। फिर वो बोलेंगे कि 100 करोड़ नहीं पहुंचा, तब भी पहुंचेगा। Right. ठीक है? I think it is more sort of a mindset rather than a currency. Like, Exactly. the world is viewing it as a currency, but like specifically India. But definitely in the coming years, they will see it as a mindset and not just a currency. So like, Not only currency but trading, it will get into store of value and then it will be getting into currency as well. Right. जहाँ पे लोग एक दूसरे से लेन देन कर पाएंगे आसानी तरीके से। So is it just the knowledge about it which is holding us back, or is it something else as well? मैंने जैसे बताया कि क्रिप्टो को देखते हैं ना, पहले इन्फ्लुएंसर्स, ये चोरों से बच जाओ, Right. राइट पीपल को फॉलो करो, रीड बुक्स, डोंट फॉलो पीपल हु आर गिविंग यू टिप्स टेलीग्राम चैनल्स पे, सिग्नल्स पे, सिग्नल बाय करो, ये करो, कोर्स सेल कर रहे हैं, ये सब चोरी का काम है। आप बताओ, अगर एक एजुकेशन किसको बोला जाता है? एजुकेशन का मतलब होता है फंडामेंटल्स पे बात करना, प्राइस प्रेडिक्शन पे नहीं बात करना, Concepts. कॉन्सेप्ट पे, रूट्स पे। क्यों? व्हाई बिटकॉइन, व्हाई नॉट गोल्ड, व्हाई नॉट INR, व्हाई नॉट डॉलर, Right. व्हाई नॉट स्टॉक मार्केट, व्हाई नॉट म्यूचुअल फंड्स, व्हाई नॉट रियल एस्टेट? You have to speak to yourself. Why should I invest in if I have 1 lakh रुपए, why should I invest in Bitcoin or why should I invest in real estate? Right. Ask questions कि क्या आपको लिबर्टी दे रहा है। जब आपके पास आंसर्स होंगे तो आप मूव ऑन कर पाओगे, मतलब आगे आप एक राइट डिसीजन ले पाओगे। तो एजुकेशन अभी क्या हो गया है, जैसे आप बोलते हो एजुकेशन, मतलब मेरा मेन फंडामेंटल आइडिया ये है कि एजुकेशन कहाँ पे देख रहे हैं लोग आज के पीरियड में। आज के पीरियड में न्यूज़ में नहीं है, लोग बुक्स भी नहीं पढ़ना चाहते, एजुकेशन लेते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम से। True. सारा एजुकेशन यहीं से चल रहा है। अब वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ये चोर लोग, वहाँ पे वो लोगों को पैसे मिलते हैं, एक्सचेंजेस से पैसे मिलते हैं, कॉइन से पैसे मिलते हैं। तो आप उनको फॉलो करोगे तो वो आपको पाई कॉइन, शिबा इनू, ट्रेडिंग बता के मेरे साथ ट्रेड कर लो, ये चार्ट ऊपर जा रहा है यार। तो फिर आप सीखोगे कैसे, समझोगे कैसे कि फंडामेंटल्स क्या है? आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो फिर स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग हो गई। उसमें भी अगर इफ वी सी 100 लोग कर रहे होंगे और किसी एक का हो जाएगा, people will start following that. Exactly. इस एक का हो गया, let's do it. और फिर वो फॉल करेगा। अब तो AI के चक्कर में लोगों ने फेक ग्राफ्स भी बना रहे हैं, फेक है ना प्रॉफिट दिखा देते हैं, Right. और लोगों को लगता है सच में बना रहा है पैसा। वो आपका ट्रेड इन्फ्लुएंसर, वो एक्चुअल में हार रहा है, वो आपसे पैसे ले रहा है और वो अपना घर चला रहा है। तो डोंट गेट इनटू दिस ट्रेडिंग ट्रैप। This is not a trading, crypto is not just for trading, I'm saying. It is going to be there for 40-50 years. It's a currency as well as a store of value as well. Right. तो take it that way. इसको ट्रेडिंग के तौर पे हटके अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखोगे तो यू गोना रीड अबाउट फंडामेंटल्स, और उसको लंबी जर्नी तक आप उसको सस्टेन कर पाओगे। So like you talked about the sustainability thing. It's a very key term and a very keyword kind of thing. So like how can we sustain it? If we want to sustain it, we need to take it from the roots of the upcoming generation as well. Yep. And that was the schools, the colleges. The schools do not have the kind of books and knowledge about it. How can we just incorporate it with that? Like, how do you think? I'll tell you one thing. I'll tell you about ourselves. We have signed a MOU with Andhra government Great. to bring chapters Okay. of Bitcoin, blockchain and crypto Right. in books 7th, 8th, 9th का। तो हम चाह रहे हैं कि बुक्स में ऑलरेडी आ चुका है, एल साल्वाडोर वगैरह में वहाँ पे क्लासेस हो रहे हैं, Okay. लोगों को सिखाया जाता है व्हाट इज बिटकॉइन इन Right. स्कूल्स। अब आपको पता होगा चाइना में AI सिखा रहे हैं लोगों को 4-4 घंटे Right. बच्चों को, Right. तो आपको स्कूल्स में लाना ही पड़ेगा। And we are learning AI right now. अभी लर्निंग AI, और वो भी उसके लिए भी प्लेटफॉर्म नहीं, आपको खुद से सीखना हाँ, पड़ेगा। खुद से कॉलेज सीखना पड़ेगा, कॉलेज right. में नहीं सिखा रहे आप। तो हम कोशिश करेंगे वो रूट लेवल पे लोगों को फंडामेंटली आइडिया है कि व्हाट इज बिटकॉइन, व्हाट इज क्रिप्टो, व्हाट इज ब्लॉकचेन। इसीलिए हम स्कूल्स और सेमिनार्स कर रहे हैं। मैं आपको ये ओपन में एक इनविटेशन है सबके लिए, जिस किसी को भी उनके कॉलेज में सेमिनार करना है, Right. रीच आउट टू अस, विल डू इट, विल स्पीक टू योर डीन, विल स्पीक टू योर प्रिंसिपल, विल पुट मनी, आवर मनी टू एजुकेट पीपल। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, रीच आउट टू अस, हम काम करेंगे। हम काफी फ्री सेमिनार्स करते हैं, इट्स 100% फ्री। नॉट ओनली अस, अगर आपको लग रहा है कि कुछ और अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, आप गो एंड फॉलो देम। Yeah, there are some genuine people, definitely. वेरी 100%। 100 में से 5-10 तो आपको अच्छे मिल ही जाएंगे। नॉट ओनली दैट, आज चैट GPT आपके फोन में है, वो कोई फेक नहीं है। वहाँ पे आप दुनिया भर के रिसर्च कर सकते हो। यू डू स्पेंड सो मच ऑफ टाइम ऑन इंस्टाग्राम, लाइक 1 घंटा निकाल लो, थोड़ा स्टडी कर लो, विच विल गिव यू गुड सस्टेनेबिलिटी का 40 साल का आपका एक इन्वेस्टमेंट प्लान दे देगा आपको कि क्यों बिटकॉइन, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, हर तरीके से आप उसको फंडामेंटली रीड कर पाओगे। वो आपके हाथ में है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, यू वांट टू टेक इट एज अ गैम्बलिंग, एज अ इन्वेस्टमेंट। Right. It's a gambling,
I don't understand anything. I'm just putting the money and Yeah, there are the fantasy apps and everything sort of things. फैंटेसी ऐप तो लोगों ने खराब कर रखा है. अब ड्रीम 11 है क्या, सब Right. सट्टा गैम्बलिंग चल रहा है. सारी यंग जनरेशन को इसी में घुसा कर रखा है. And like big names are like promoting it. The cricketers and everyone, they have it. Let's take the names. I'm telling you, like all of them. Rohit Sharma, uncensored. To be honest, this is like what I'm so, मेरे को देख के ही बुरा लगता है. Right. मेरे को अभी तक लगता था बॉलीवुड स्टार ही चोर है, क्योंकि वो लोग गुटखा उटका प्रमोट करते हैं, सिगरेट्स प्रमोट करते हैं. लुक एट दिस पीपल, दे आर प्रमोटिंग गैम्बलिंग. और वो गैम्बलिंग कौन कर रहा है? वो 18 16 17 साल का बच्चा गैम्बलिंग कर रहा है. Exactly. Like I've been watching my friends in my colleges. They're making teams. They select. I was like, why are you doing this? It's pure gambling. क्योंकि वो उनके जो मेंटर्स हैं, वो जो क्रिकेटर्स हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं. Exactly. और जर्सी पे people love them. and people love them. इंडियन जर्सी पे ड्रीम 11 है, गैम्बलिंग कंपनी. आप उस पे जाके गैम्बल कर रहे हो. वही नहीं, मैं आपको बताता हूँ, एक स्टैट में पढ़ रहा था. 60 बिलियन बोल रहा हूँ मैं आपको, $60 बिलियन की बात कर रहे हैं. $60 बिलियन रेवेन्यू है एक साल का गैम्बलिंग एप्लीकेशन का, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज का. 60 बिलियन बहुत बड़ा नंबर है. लोग इतना गैम्बलिंग में परेशान है. बट अगर आपको सस्टेनेबिलिटी, जो आपने वर्ड यूज करता है, कीवर्ड है, अगर आपको सस्टेनेबली करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट लोगों को फॉलो करना पड़ेगा. So like, can you name some books for our viewers so that they can just... Bitcoin Standard. Bitcoin Just Standard. one? Digital Gold. Okay. Lots of easy money. Okay. There are few of them I would recommend. Bitcoin की नहीं है, जैसा Magic of Thinking Big, all of that. Okay, okay. But if I have to say Bitcoin का, read Bitcoin Standard, man. Okay. Read 10 times. 10 times, 15 times. एक बार पढ़ो, छोड़ दो. Every time you read, you're gonna come back with so strong confidence, saying that, I mean, उसमें इतना अच्छा explain किया लास्ट 4 साल की पूरी financial history, हर country की, Okay. how the currency used to be backed by silver. एक टाइम पे हमारी silver, जब स्पेन की करेंसी वगैरह सिल्वर से बैक थी, क्यों गोल्ड स्टैंडर्ड पे आई, गोल्ड स्टैंडर्ड से फियाट में कैसे कन्वर्ट हुआ. Right. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया. नॉट ओनली दैट, देयर इज अ डॉक्यूमेंट्रीज ऑन यूट्यूब 1.5 घंटे की. द बिटकॉइन डॉक्यूमेंट्री डालोगे, राइज एंड राइज बिटकॉइन बोल के है, Right. बिटकॉइन ओरिजिन लिखा हुआ है. तो ऑल ऑफ दैट गोना गिव यू अ वेरी गुड बैकग्राउंड कि लास्ट 100-200 साल में कहाँ से कहाँ हम आ गए, एंड हाउ दिस गवर्नमेंट्स आर स्कैमिंग यू by printing this money, how these bankings are scamming you to keeping your own money and losing your own control. तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा. Then you will start investing right way. Forget about investments, but अगर आपको cope up करना है, जो ongoing globalization है, जैसे अगर AI कोई छोड़ रहा है, तो पागल हो. मतलब just imagine next 5 years down the line you're gonna see robots near you. ठीक है, AI आपको यूज करना ही पड़ेगा. अगर आप बुक्स भी पढ़ रहे हो, अब आपको इंजीनियर भी हो, डॉक्टर भी हो, आपको AI करना पड़ेगा, वरना आपका बाजू वाले जो कंपटीशन, वर्ल्ड इज फुल ऑफ कंपटीशन, यू हैव टू बी अहेड ऑफ एवरीवन, यू नीड टू यूज द टेक्नोलॉजी. तो लुक एट द टेक्नोलॉजिकल वे, एटलीस्ट सेंडिंग मनी समवन टू समवन हु इज in different, not only cities, I'm saying different countries, maybe different planets in the next 20, 30, 40 years, okay? Buying something with digital assets. Yeah. Why? तो आपको इसके सारों के आंसर्स मिलना स्टार्ट होंगे. I think people choosing these banking systems and everything is because of the security factor, and because they have been thinking that Bitcoin is and everything is not that safe. So like, how would you explain it to people? Like, what facts, like what hard facts would you give people to understand that Bitcoin is also safe? Like, definitely we talk about blockchain and everything, but we cannot explain blockchain to everyone, right? But we can explain Bitcoin to people. Yep. So how to do that? So Bitcoin की जो underlying technology है उसको blockchain है. True. ठीक है. Every information, आज जो information data में जाता है आपके, कोई Facebook, Instagram या कोई भी बैंकिंग सर्वर का, उसका एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है. Right. तो सारी इन्फॉर्मेशन वो सेंट्रलाइज डेटा सेंटर्स में स्टोर होती है. इट्स वेरी इजी टू हैक दैट. Right. तो एक बैंक इसलिए हैक, आपने सुना होगा बैंक हैक हो गई है, इंस्टाग्राम स्लो डाउन हो गया है, व्हाट्सएप डाउन है, क्योंकि वो डेटा सेंटर ब्रीच हो चुका है. इट्स इजी. आज की पीरियड में पेंटागन भी, जो यूएस का पेंटागन बोलते हैं, वो तक हैक हो चुका है. बट ब्लॉकचेन क्यों नहीं हैक होता है? क्योंकि एवरी ब्लॉक इज लिंक्ड टू नेक्स्ट ब्लॉक. Exactly. तो ये क्रिप्टोग्राफी इंक्रिप्शन है, जो कि बहुत हाई लेवल का कंप्यूटेशन पावर है. तो वो हर ब्लॉक एक दूसरे से लिंक है, जो 2008 से लेके 2025 से लेके जब तक बिटकॉइन 2140 तक होगा, हर ब्लॉक एक दूसरे से लिंक है. तो इफ यू वांना decode one block, you have to decode the previous block previous and block. previous block and previous Right. block and previous block, which is next to impossible. Right. एक 256
SHA एल्गोरिदम के ऊपर 4.5 मिनट की यूट्यूब पे वीडियो है. If somebody watch that, उसको समझ में आएगा कि बिटकॉइन और ब्लॉकचेन कितना सिक्योर है. Right. ठीक है. तो बिटकॉइन अगर सिक्योरिटी वाइज देखा जाए तो आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करने का टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लॉकचेन. इट्स अ बिग टॉपिक. वी कैन कीप टॉक लाइक माइनिंग बात करना पड़ेगा, सब कुछ बात करना पड़ेगा, हाउ SHA 256 डिजिट बाइनरी नंबर्स वर्क्स. बट अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल दूं, स्पेंड लाइक 10 मिनट्स का व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाई इट कैन नॉट बी हैक्ड. अब यूट्यूब पे डालो, देख लो, आपको समझ में आएगा हाउ बिटकॉइन इज सो सिक्योर. एंड दैट इज व्हाई गवर्नमेंट्स आर बाइंग इट. मेरे को मत बिलीव करो यार, गो एंड चेक. ट्रम्प इज बाइंग, US इज बाइंग, स्विट्जरलैंड, द होल वर्ल्ड इज बाइंग. यू आर नॉट बाइंग. So, like, do you think that there could be a possibility of any kind of a future technology which will be like, you know, it could beat what like the Bitcoin is doing right now? Like, do you think there can be, or is Bitcoin the peak of the money innovation? If you are coming to quantum computing, no, like quantum computing, I have a different question for that. I don't think so. I don't think there is any other technology as of now. Because blockchain is internet 2.0. Okay. क्योंकि blockchain is decentralized by nature. There is not only one center, जो हमने अभी बात की थी. एक सेंटर को ब्रीच करना, हैक करना बहुत आसान हो जाता है. Doesn't matter वो फेसबुक हो या पेंटागन हो. बट अगर वही इंफॉर्मेशन सारे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स में है, to hack every single computer is very impossible. Right. And at the same time you have to hack it, which is next to impossible. So, like, will there be any possibility in the next 100 years or something? मैं 100 years तो नहीं बोल सकता, but next 20, 30 years, 40 years, see, अगर ये टेक्नोलॉजी कोई आती है तो उसको, जैसे इंटरनेट है, एंटीवायरस क्यों बना? राइट. ठीक है. वायरस आया, फिर एंटीवायरस आया. ठीक है. तो अगर प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, अगर प्रॉब्लम आ जाती है, कोई टेक्नोलॉजी बन जाती है, तो सोल्यूशन आ जाएगा बिटकॉइन को उसको करने के लिए. ठीक है. दैट्स सिंपल एज दैट. सो now let's talk about the pump and dump culture in crypto. The favorite one for everyone. So, like, let's talk about the other side of the crypto world, which is like meme coins, influencer promotions, pump and dump schemes, and everything. What is your take on this growing trend? And like, how can you, how can the new users protect themselves from this? पहले तो बोलूँगा जो ये influencers हैं ना, सारों को जेल में डालो. और पहले तो hang them और I repeat, uncensored. put them in jail. क्योंकि यार गलत काम कर रहे हो यार, मत करो यार. लोगों को फंसा रहे हो, लोगों को डुबा रहे हो. Right. यार बहुत अपना फायदे के लिए एक नॉर्मल बंदे को थोड़ा सा have some ethics. Do it right way. थोड़ा पैसे कम कमा लोगे, सुकून से सो पाओगे. तो ये इनको जेल में डालो और इनको है ना hang them, to be honest. Pump and dump is what? It's a casino. One person, it's a lottery. एक जन जीतता है, जीतने के बाद उसका पेपर में नाम दे देते हैं कि यार एक बंदा लॉटरी जीत चुका है. अब एवरीबडी वांट्स टू मेक दैट लॉटरी, मेरे को भी जीतना है. नहीं हो पाएगा यार, वो लॉटरी ही है, वो एक जीतेगा बस उसमें. और वो भी जीत के वो घर नहीं जा रहा, वापस लॉटरी खेल रहा है, वो हार ही जाएगा. इट्स लाइक अ कसिनो. मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ. कसिनो में आप जाते हो, आपको लगता है आप जीत पाओगे. यार वो कसिनो है ना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है. इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, सैलरीज, इतना पैसा खर्च करते हैं, इक्विपमेंट, सब कुछ. तो उनको पैसे बनाना है. आप वहाँ पे जाके उनके सर्विसेज भी यूज़ कर रहे हो और पैसे भी जीत के जाओगे. ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होता. इट्स अ बिजनेस. ऐसा नहीं होता. तो डोंट गेट इनटू दिस पंप एंड डंप. लॉजिकली सोचो आप कि अगर मेरे को अगले 30-40 साल में ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहता हूँ और मेरे को सस्टेन करना है, तो इज इट गोना हेल्प यू? कि यार एक बोलते हैं, एक नैरेटिव बनाते हैं, यार एक का ना अभी कॉइन लॉन्च हुआ है, इसका मार्केट कैप सिर्फ 10 मिलियन है. ये 100 मिलियन तो आसान से जा सकता है. 10x तो ऐसे ही हो जाएगा. 100 मिलियन क्रिप्टो के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है. Right. 1-2 बिलियन भी कुछ नहीं है. Right. तो 1 बिलियन तक भी जा सकता है. लुक एट द 100x का ग्रोथ, 1000x का ग्रोथ. डाल दो. खुद डालेंगे, लोगों को डलवाएंगे. Right. I heard you saying this. घर बेच दो, गाड़ी बेच दो. To buy Bitcoin. To buy Bitcoin. Why? The whole world is buying Bitcoin. That's Right. why. The governments are buying. The governments are not buying Pepe, Shiba Inu Exactly. or other coins. Right. They're not buying all There of that. must be something. There must be something. और 1.5 करोड़ क्रिप्टो करेंसीज है. सब पे डालोगे क्या? It's impossible कि सब सक्सेसफुल हो. ठीक है. सब ये पंप डंप एक बहुत रिच टू बोलते हैं ना, कल अमीर होने वाली स्कीम है. और उसमें से एक आदमी अमीर होता है, 99% डूब जाते हैं. वो एक आदमी भी हार ही जाता है एंड में. और हु मेक्स मनी? जो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं वो पैसे बना लेते हैं, और जो प्रमोटर्स हैं जो कॉइन को लॉन्च किया है वो बना लेते हैं. कि वो पहले पंप कराएंगे. राइट. जैसे नेचुरल फ्लो आएगा वो सारे डंप कर देंगे, वो जीरो पे आ जाएगा. फिर लोग बोलते हैं क्रिप्टो स्कैम है. भाई तेरी सोच स्कैम है, तुम्हारी सोच स्कैम है.
ओके तुम्हारी सोच क्या है, तुम गलत चीजों में फंसे हो। बिटकॉइन में नहीं होता ना ऐसे। वो लोग कहते हैं बाय बिटकॉइन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और 5 साल तक बाय करते रहो। Right. देख मेक you'll gonna make like at least 4-5x minimum. Simple. So, like, what are the ethical responsibilities for these influencers? Because obviously we are influenced by them. Okay. So, what do you think? Like, could you name, as in, like this, like, could you name some 5 pointers or something? Like, these are the ethical responsibilities. You should stick to this. मैं सच बताऊं कि बहुत मेरे लिए सबसे टफ क्वेश्चन ये है क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर हूं नहीं, मैं कंटेंट क्रिएटर हूं नहीं, बट मैं एक चीज बोलूंगा कि आप वो एजुकेशन लोगों तक पहुंचाओ जो आपको लगता है कि आपका बच्चा, कि आप अपने मम्मी डैडी अपने भाई से शेयर कर पाओ, कि आप अपने मम्मी पापा को ये बोलोगे मेम कॉइन खरीदो, डुबाओगे क्या? Right. तो अगर आप वो नहीं कर सकते तो नॉर्मल आदमी को जो आपके व्यूज के लिए देख रहा है उसको क्यों डुबा रहे हो? Promote only the ethical and utility coins if you can. Don't go on live trading and show people कि मैंने इतना पैसा बना लिया। वो क्या करते हैं, उनको रेफरल्स आते हैं एक्सचेंजेस से। Okay. What they do is like I'll ask you Vidhi, I'm gonna go on live trading. I'm a good trader now because मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। Right. कभी एक ट्रेड किया हुआ है तो उसका प्रॉफिट मैं आपको दिखा दूंगा। आपको लगेगा यार अब्रार तो बहुत पैसे कमा रहा है, मैं भी इसकी स्ट्रैटेजी यूज करती हूँ। मैं बोलूंगा विधि मैं रात में 8 बजे ट्रेड करने वाला ऑनलाइन, आप लोग आ जाओ, आप भी 10 लोगों को लेके आओगे and you try to follow me. Right. मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, मैं आपको नीचे रेफरल दे रहा हूँ कि मैं ये एक्सचेंज पे जाके, मैं सर्टेन एक्सचेंज पे जाके मैं ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, आप भी वही एक्सचेंजेस से लिंक होते हो, आप वहीं पे ट्रेड करने की कोशिश करते हो कि वही ट्रेड वही एक्सचेंज का चार्ट में मैं आपको ट्रेड करवा रहा हूँ। अब क्या होता है, मैं हारूं या जीतूं मैं आपको दिखा दूंगी मैंने जीता है, बट आप जितना भी हार रहे हो, आपकी जो भी ट्रेडिंग फीस है वो एक्सचेंज मुझे 70% कमीशन दे देगा, सिर्फ 30% खुद के पास रखेगा। Right. तो ये इथिकल चीज़ें नहीं है। तो मेरा होता है कि एक प्रॉपर एजुकेशन यूटिलिटी कॉइन्स को दें, पंप एंड डम, ये चोरी वाले स्कैमर्स, ये आपको भी पता है क्रिप्टो में कितना पैसा है एक वीडियो के लिए। Right. कितना पैसा मिलता है यार। मैं आपको बताता हूँ 150 ईमेल्स आते हैं हफ्ते में, 100-150 नेम इट, वो पैसा देने के लिए रेडी है। अब जितना मना करते हो ना उतना ज़्यादा बोलते हैं। अब हमने तो सबको मना कर रखा है, हमारे लिए तो कि आप बताओ कितना चाहिए, कि आपकी प्राइस क्या है। भाई तुम्हारी औकात नहीं मेरे को खरीदने की, ठीक है। आई एम नॉट हियर टू सेल, आई एम हियर टू मेक सम इम्पैक्ट, आई एम हियर टू मेक एन हिस्ट्री। आप मुझे पैसों से नहीं खरीद सकते। इफ देयर इज समथिंग, वन मोर डिस्क्लेमर, आपके पास अगर आप एक अच्छा एजुकेशन पहुंचाना चाहते हो, आप क्रिएटर्स हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, आप जेन्युइन क्रिप्टो में काम करना चाहते हो, क्रिप्टो वाला प्रमोट कराएगा आपको हमारे चैनल्स पे। आप अगर देश का भला चाहते हो, किसी का भला चाहते हो, तो मैं आपको प्रमोट करूंगा। मेरे को पैसे लगाना पड़ेगा, मैं लगाऊंगा, बट अपने जेन्युइन काम करना चाहिए। तो ये ट्रेडिंग वाला मत काम कराओ, ये सब्सक्रिप्शन, टेलीग्राम, पेड चैनल्स, सिग्नल्स, ये सब मत करो। करना है एजुकेशन दे दो यूट्यूब पे, और छोटा मोटा स्पॉन्सर लेना है तो ले लो, बिकॉज यू वांट टू मोनेटाइज दैट, इट्स ओके। तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, फंडामेंटली दो, और नीचे आप किसी को प्रमोशन में डाल दो। वो भी हम नहीं करते। हम अभी नया शुरू किया है, जो प्रोजेक्ट्स हमें अच्छे लगते हैं, ठीक है ना, हम कभी किसी को पैसे देते हैं ना हम किसी से पैसे लेते हैं। सिंपल सा रूल है हमारा। Right. अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि वो यूजफुल है और वो फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है, मैं मेरे मम्मी डैडी घर पे मैं उनको रिकमेंड कर सकता हूँ, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। हमने कुछ प्रोजेक्ट्स अब लेके आएंगे, Okay. और वैसे हम क्रिएटर्स को भी हम ऊपर लाना चाहते हैं, Okay. कम्युनिटी ग्रो के लिए। Right. So, like, reach with personality. रीच विद पर्सनालिटी। Right. So, like, when you started with this crypto wala, how did you find a team, like an appropriate team for this, who has the same vision which you have? It took a lot of time. I swear it took. I am still struggling. If you guys are passionate, Right. please feel free to reach out. Right. We are looking for people Okay. who are crypto enthusiasts and who wants to do it for to make an impact, history, या कुछ बनाने के लिए चाहते हैं ना, किसी पैसा नहीं बनाना है। Right. Give a value to the community, society, देश, users को, and then पैसा should be the by product. अगर आपकी ऐसी mentality है और crypto passionate हो, reach out to us, हम आपको hire करेंगे। अभी भी हम struggle कर रहे हैं। काफ़ी कम लोग हैं हमारी टीम में जो बहुत पैशनेट है। अब अच्छी सॉलिड टीम बन गई है, बट हमें और लोग चाहिए। Right. ठीक है, इट्स वेरी, आपको पता है कि कितना मुश्किल है कि एक क्रिप्टो पैशनेट लोगों को आपको वो करना। Obviously, like, the first aim is to educate people that what is crypto. Then only we can have that passion. Exactly. So, like, let's be honest, like, most people want to enter this crypto world just because they want to have money and get rich overnight. What do you recommend to them? होगा ही नहीं है, होगा ही नहीं। So, like, no, as in long term thinking में हम क्या उन्हें recommend कर सकते हैं? बिटकॉइन बाय करते रहो एवरी मंथ, Okay. एवरी मंथ, बाय एवरी डे। Okay. आप बस पैसा बाय करते रहो, Okay. and keep a span for 3-4 years. Okay. If you lose money in Bitcoin, come back to me, मैं तुमको पैसे दूंगा। Simple. That's what Right. Bitcoin वाला, crypto वाला is. You will never lose money investing in Bitcoin in a longer
स्पैन ऑफ टाइम, लॉन्गर स्पैन इन द सेंस 1 और 2 3 4 ईयर्स के लिए एटलीस्ट। आप एक महीने में ट्रेड करके अरे मार्केट नीचे हो गया, मार्केट ऊपर हो गया, यार इन्वेस्टमेंट है तो डिमांड सप्लाई पे चलता है, तो मार्केट रिएक्शंस भी होते हैं, ठीक है। छोटा सा मार्केट है अभी, तो इतना बड़ा भी नहीं है, 4 ट्रिलियन मैं मानता हूँ बड़ा है, बट गोल्ड, बॉन्ड मार्केट, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट के हिसाब से बहुत छोटा है, तो इट कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड, बट लॉन्ग टर्म के लिए मैनिपुलेट नहीं कर सकते जैसे स्टॉक मार्केट को लॉन्ग टर्म के लिए मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो क्रिप्टो में होता है, अगर आप लॉन्ग स्पैन में हो, बाय बिटकॉइन एवरी मंथ, एवरी डे, 3-4 साल में यू विल इजीली मेक 3-4x इजीली, यू विल नेवर लूज मनी इन दैट। तो ये बहुत इजी स्ट्रैटेजी है जिसमें आपका डॉलर कॉस्ट एवरेज भी हो जाता है। डोंट लुक एट द मार्केट कि अभी ऊपर है अभी नीचे है, आप बाय करो कि ऊपर भी है तो भी बाय करो, नीचे भी है तो बाय करो, बट आपका एवरेज बहुत अच्छा है। दैट इज व्हाट पीपल गेट स्कैर्ड ऑफ, ऊपर जाता है नहीं नीचे आ जाएगा, दैट इज व्हाट लाइक दैट इज अ मेंटालिटी, राइट? इट इज गोना गो अप व्हेनेवर इन डाउट, जूम आउट। 5 साल के पीरियड में ये यूं दिखेगा, महीने भर के इसमें यूं, एक दिन के दिन 2 दिन के इसमें यूं दिखेगा, तो ऊपर जा रहा है ना तो बाइट, नीचे जा रहा है बाइट, आपका एवरेज ऐसे रहेगा, और मार्केट 5 साल में इधर रहेगा और आपका एवरेज यहाँ रहेगा। सिंपल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और ये क्रिप्टो इज लॉन्ग टर्म, राइट? अगर क्रिप्टो में आप 1 महीना 2 महीने 3 महीने 6 महीने के लिए मत आओ यार, आप पैसा लूज करोगे, गलती करोगे आपका, और बाद में उसको स्कैम बोल के जाओगे। स्कैम आपकी सोच में, फिर मैं ये बोलूँगा, or maybe the right way of doing it, right way of doing it, which is long term, which is long term, क्योंकि everybody is buying for long term, simple as that. So like if Abrar would be at the age of 18 years old and he would have 10,000 to spend into this, how would he start with it? Buying books and spending that 10,000 in myself, reaching to the right people, going to the right events, not investing the single penny. In 18 I'm saying, I'm 18. Yeah, right. Okay? 18. I don't have any responsibility, right. Nothing. So I'll pay every penny on myself, to learn more about yourself. Crypto, education about educating myself about crypto. Right. Every single penny. मैं आपको बताता हूँ, धीरू भाई अंबानी 1971 में कुछ उसको 150 रुपए उनको मिले थे एज अ फर्स्ट सैलरी, उन्होंने जाके सीधे 5 स्टार होटल में चाय पी ली थी। व्हाई? दे वांट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट द रिच पीपल डज। तो गेट इनटू, मैं अब रिच के पास नहीं जा रहा हूँ, बट put that money in you, in your mindset. That is obviously an investment. Exactly, that's an investment. आप 21-22 साल तक आओगे, 1-2-3 साल स्पेंड करके आओगे ना, you will be like a steel, कोई भी हला नहीं पाएगा, and you will be like one of the well-known, respected, richest person, जो आप कर पाओगे long term sustainability के लिए, एक इम्पैक्ट लेके आके, एक हिस्ट्री बना के, अपनी फैमिली को भी आपका नाम बनेगा, आपका भी नाम बनेगा उस तरीके से। बट अगर आपने वो पैसा इन्वेस्ट की तौर पे रोका 18 में, डोंट इन्वेस्ट इन 18, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आराम से बैठो यार, अभी तो सीखो, राइट? स्पेंड टाइम टू लर्न। कमाना उमाना 25-26 साल के बाद आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो केस अलग हो जाता है। बट पहला पैसा खुद पे लगाओ, खुद के माइंडसेट सीखने पे लगाओ, बुक्स बाय करो, 6-6 घंटे स्पेंड करो, 3-3 घंटे अपने जाके देखो कि माइकल सेलर क्या बोल रहा है, मेटा प्लैनेट क्या बोल रहा है, यूएस क्या बोल रहा है, रीड द हिस्ट्री ऑफ whole financial system, the actual history which we need to learn, and not just the ones कि किसने किसे कब मारा था, the traditional one, वो हिस्ट्री में तो ना किसी का फायदा हुआ है ना कुछ होना, which we used to like mug up, अच्छा 1800s में ये हुआ था, and I was like, I used to read and I used to ask my mom, mama ये कुछ आगे मुझे will it really help me or something, and she was like, just do it, you have to do it right now, you don't have any other option right now. पेरेंट्स अगर ये बोल रहे हैं तो उनको ये बोल देना कि जब नेक्स्ट टाइम बैंकिंग का फोन आएगा ना, मैं उनको ये बोलूंगा कि अकबर ने पानीपत की लड़ाई कौन सी लड़ी थी, एग्जैक्टली, वो बोलेगा भाई तेरे को फाइनेंशियल एजुकेशन आता है तो पैसा दे, अगर पैसा चाहिए तो फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू, ऑल ऑफ दैट इट्स ऑल अ क्रैप, वो अगेन इट्स एजुकेशन सिस्टम फॉल्ट, लोगों को स्मार्ट नहीं बनाना है, वरना अगर स्मार्ट बनेंगे, फाइनेंशियली लिटरेट होंगे तो दे विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पास आंसर नहीं है ना, इसीलिए तो सब ये हिंदू मुस्लिम ये हो गया, ये टैरिफ, ये ऑल ऑफ दैट, इट्स व्हाट इज दैट, इट्स ऑल क्या बोलते हैं आपको, गुमराह करने के लिए। ओके, गुमराह करना है आपको। अगर राइट एजुकेशन बचपन से देंगे तो आप स्मार्ट हो जाओगे, हो जाओगे, गवर्नमेंट को पूछोगे एम्प्लॉय रेट क्या है, मेरे को क्या हॉस्पिटैलिटी दे रहे हो आप, हॉस्पिटल्स कहाँ है, एजुकेशन कहाँ है, टैक्सेशन कहाँ है, आपका पैसा क्यों प्रिंट कर रहे हो आप, राइट? ये नहीं आएगा ना, इसलिए तो आपको ज्योग्राफी हिस्ट्री सिखाई जाती है। अब ज्योग्राफी हिस्ट्री मेरे काम में आ रही है क्या, मैं क्या करूँ हिस्ट्री का, किसने किसको कब मारा, या I mean, I respect it, I completely respect it. They are definitely that they are the people, they have made sacrifices for us. That is okay, which is for the country have done it, amazing, right? Which is patriotism सिखाना बहुत जरूरी है, exactly. But other कौन किसको क्या चल रहा है धिंगाना, वो मुझे नहीं जानना है, और वो भी ठीक है, बट एक पॉइंट के बाद इमेजिन, लेट्स गेट इनटू स्ट्रेट पॉइंट कि इंसान जीता है पैसे कमाने के लिए, ट्रू, ठीक है, पैसा आपका कब बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंजीनियर बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो,
आप एंड में आपको पैसा कमाना पड़ेगा आपकी लाइफ सस्टेनेबल आगे जीने के लिए, आपकी फैमिली के लिए, राइट। वो उससे नहीं आएगा, आपको फाइनेंस में आना पड़ेगा। डजंट मैटर आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अगर आप फाइनेंस खराब हो तो यू आर अ पैथेटिक डॉक्टर, क्योंकि आपने डॉक्टर तो बहुत अच्छे होंगे, जो आपने पैसा कमा लिया है आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, राइट, लग्जरी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। राइट। डॉक्टर तो बन गए, इंजीनियर बन गए, 5 लाख की सैलरी है, बट टैक्स नहीं पता, उड़ा रहे हो, कितना भी खर्च कर रहे हो, सेविंग्स नहीं पता, राइट वे ऑफ स्पेंडिंग एंड ऑल, आपके इन्वेस्टमेंट्स नहीं पता, कौन से राइट इन्वेस्टमेंट्स है, कौन से बैड इन्वेस्टमेंट्स है, तो डॉक्टर बन के फायदा क्या हुआ? एजुकेटेड तो हो गए, फाइनेंशियली इलिटरेट है, तो आप में एक नॉर्मल बंदा जो नहीं पढ़ा है उसमें क्या फायदा? कुछ भी नहीं है। वो भी पैसे, उसके पास भी पैसे नहीं है, और एंड में आपके पास भी पैसे नहीं है, 5 लाख कमा के भी आपके पास पैसे नहीं है, तो दैट वे। तो फाइनेंस टचेस एवरी सिंगल पर्सन, डजंट मैटर यू आर अ फार्मर और यू आर अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, ठीक है, या आप ऑटो वाले होंगे या तो आप प्लेन चलाने वाले होंगे, आपको फाइनेंस टच करेगा। यू हैव टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। Yeah, at least basic तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। बाकी तो it all depends on your interest. Exactly. So like what are the other 5, like what do you think, what are the 5 topmost professions or fields which are going to have a very good amount of entry and success for people? AI, definitely. robotics, right. space travel, Okay. solar panels, Okay. solar में जो भी करना right, चाहे, right. electrical cars, crypto, Okay. Neuralink, brain chips पे जो काम हो रहा है, right. और that's what I 5 बोला, मैं 6-7 बोल दिया मैंने, crypto, right, Web3, crypto, yeah. Those are the things I think next 10 साल में आप इसका इतना अच्छा अडॉप्शन देखोगे जो आज आपको नहीं दिख रहा है। True. ड्राइवरलेस कार्स, एवरीथिंग, रोबोटिक्स में आप इसमें जो भी एक फील्ड पकड़ लो, फाइनेंस इज माय बैकग्राउंड, तो मैंने क्रिप्टो चूज किया है। आपको कहीं और रेवोल्यूशनाइज करना है, गो गेट इनटू एआई धमाल मचा रहा है। People are collaborating and merging their professions, right? A tech person can also do the finance. A finance is also doing tech, because everything is like moving parallelly. Exactly. Yeah. Exactly. So like coming back to the quantum computing question. The most favorite for everyone. Yeah. So like I was like a friend of mine told me that you need to ask this question from Abrar, because I really want to know what he has to answer to this. I'll repeat it in the exact same words. So he thinks like he wants to ask you, like, do you think quantum computing can ever be a real threat to Bitcoin? And can it actually break that cryptographic foundations that protect the network? Or do you think these fears are just overblown, or at least for now? See, हर जो टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है ना, उसको रुकाने के लिए कुछ ना कुछ एक नैरेटिव बना जाता है। अभी ये ना ब्लॉकचेन को, क्रिप्टो को गवर्नमेंट नैरेटिव तो नहीं बन पा रहा है, गवर्नमेंट रुका है, ऐसा तो नैरेटिव नहीं बन पा रहा है, तो उन्होंने बोला कि फ्यूचर क्वांटम कंप्यूटिंग है जो आके ब्लॉकचेन को क्रैक डाउन करेगा, उसका कोर क्रैक डाउन करेगा। Just imagine, blockchain is the most secure code ever written in the history of internet. Right. Which is unbreakable. True. And at any point of time. अगर ये ब्रेक कर पा रहा है ना, तो मुझे लगता है पेंटागन ने पूरे वर्ल्ड की बैंकिंग को क्रैक कर पाएगा। जब पूरा बैंक, पूरा वर्ल्ड ही क्रैश कर देगा, वो इंटरनेट को क्रैश करा देगा क्वांटम कंप्यूटिंग, तो क्या बिटकॉइन और क्या क्रिप्टो अगर हो जाए, मैं बता रहा हूँ हाइपोथेटिकल सिचुएशन में। Right. जस्ट इमेजिन, तुम्हारा जो बैंकिंग का कोड है ना, वो 4 डिजिट का होता है, और बिटकॉइन का 256 SHA होता है। अगर 256 SHA बाइनरी नंबर्स को क्रैक कर रहा है, सारे ब्लॉकचेन को हैक कर पा रहा है, उसको बैंक को हैक करना कितना आसान होगा। तो तुम्हारा बैंकिंग क्या काम का, सब कुछ, तुम्हारा गोल्ड, सब कुछ, स्टॉक मार्केट, सब कुछ क्रैश डाउन कर देगा। तो क्या बिटकॉइन और क्या क्रिप्टो। सेकंड ये है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे मैंने पुराना एग्जाम्पल दिया, पहले वायरस बनाया जाता है, फिर एंटीवायरस आता है। अगर ऐसे क्वांटम कंप्यूटिंग की कुछ आता है, तो बिटकॉइन एंड गोल्ड में डिफरेंस क्या है? गोल्ड इज अ पत्थर, येलो पत्थर, ऐसे इज अ येलो स्टोन, उसमें कोई इनोवेशन नहीं आ सकता। आपको पत्थर मारते रहो बस एक दूसरे को, वही कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, उसका शेप चेंज कर सकते। फ्यूचर स्कोप यही है उसका, फ्यूचर स्कोप वही है, पत्थर ही है, वो चेंज कभी नहीं हो सकता। राइट। बिटकॉइन इज अ इनोवेशन, इट्स अ टेक्नोलॉजी। अगर क्वांटम कंप्यूटर ऐसा कुछ आ जाता है, इन अ सीरियस नोट आ जाता है, तो बिटकॉइन को इनोवेट भी किया जाता है। समझ रहे हो? बिटकॉइन को वो पैरामीटर्स लेके आएंगे, जैसा वायरस बन के एंटीवायरस बना था, तो बिटकॉइन के ऊपर भी अभी काफी लोग बात करेंगे, चलो ऐसा आ जाता है ना, तो उसके ऊपर हम कोई एक है ना प्रोटोकॉल इसमें डाल देंगे जो मोर सिक्योर होगा। राइट। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है कि लोगों ने कहा, Exactly. लोगों का एक होता है ना कि नैरेटिव बनाना है, हाँ, डराना है ना, अब कहीं से तो कुछ तो डराना है। तो भाई अब मैं प्रूव नहीं कर पा रहा बिटकॉइन स्कैम है कि फ्रॉड है, क्योंकि यूएस बाय कर रहा है, तो क्या बोलूंगा? क्वांटम कंप्यूटिंग आके तेरा बिटकॉइन ब्लॉकचेन को क्रैक डाउन करेगा, तेरे प्राइवेट कीज निकाल के, तेरे सीड फ्रेज निकाल के तू तेरा ना वॉलेट ड्रेन आउट कर देंगे। यार ऐसे नहीं होता, इतना आसान नहीं है। ठीक है, पूरा ऐसा होता ना तो यूएस बिटकॉइन नहीं बाय कर रहा होता। राइट। ठीक है,
That's what people need to understand. मेरी that. एडवाइस कुछ नहीं है, उनके पास जो एडवाइजर्स है ना वो अगले 100 साल का सोच रहे हैं, हम तो शायद अगले 5-10 साल का सोच रहे होंगे, वो अगले 100 साल का सोच रहे हैं। यूएस जब बिटकॉइन बाय कर रहा है तो मेरे बोलने से मत बाय करो, कम से कम ट्रम्प और यूएस से बाय कर रहा है उसके लिए तो बाय कर लो। Will Indian government think about lowering these taxes? 100%, एक साल, जैसे मैंने कहा, एक साल के अंदर और नेक्स्ट 2-3-4 ईयर्स के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट बिटकॉइन एज अ स्ट्रैटेजी रिजर्व बाय करेगा। Okay. 100% करेगा। जैसे यूएस ने बिल साइन किया है, इंडियन गवर्नमेंट 2-3-4 साल में करेगा ही करेगा। दे आर फोर्स्ड टू डू इट बिकॉज एवरी कंट्री इज डूइंग इट। व्हाट यू गोना डू? आपको करना ही पड़ेगा। आज मना कर दो, कल मना कर दो, परसों हाँ ही बोलना है। वो होता है ना कि मम्मी एक चीज के लिए बोलते हैं नहीं ये नहीं लेना है, वो नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, बाद में करना ही पड़ेगा। फोर्स, इट हैज टू बी डन, राइट। एंड देन इन एट द एंड ऑफ द डे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्सेशन भी कम करना पड़ेगा, वरना यहाँ से पैसा निकल जाएगा। So why are they not promoting it as in, why are they not keeping it as a very basic concept for people that you have to do this, you have to know about it? हमने जैसे कहा ना कि टेक्नोलॉजी है और ये डिसरप्टिंग, are they fearing some control over it or something like that? बेसिकली पीपल गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा टैक्सेशन से आता है, और अगर गवर्नमेंट क्रिप्टो को ज्यादा प्रमोट कर पाए, आपको पता है कि क्रिप्टो में देयर आर सो मेनी लूप होल्स दैट यू कैन गेट रिड ऑफ टैक्सेशन, राइट। तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं आएगा। अब यूएई गवर्नमेंट, स्विट्जरलैंड एंड ऑल ऑफ यूएस एंड ऑल, वो ज्यादा टैक्सेशन के पीछे नहीं भागते, वो इनोवेशन के पीछे भागते। ट्रू। उनको पता है कि इनोवेशन हो जाएगा तो एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू होंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। हमारे पास वो नहीं है, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, हमें हमारे लोगों से टैक्स कैसे मैं इकट्ठा करूँ होता है। अगर इसको ज़्यादा प्रमोट करेंगे, ज़्यादा लोग आएंगे और इनको शायद लूप होल्स मिले तो टैक्सेशन बच पाए। तो वो अभी, और रूल्स रेगुलेशंस क्लियर नहीं है, हमारे पास ऐसे कोई लीडर्स ही नहीं है जो रूल्स रेगुलेशन बना पाए। तो गवर्नमेंट डर रही है, गवर्नमेंट बोल रही है कि यार करते हैं, अब करते हैं। तो मेरे को लगता है इट्स अ हाई टाइम नाउ, जो गवर्नमेंट 100% अब करना ही चाहिए, अब करेगी, 100% करेगी। प्रमोशन का ये भी होता है ना कि अगर मैं आपको प्रमोट कर दूं तो इंडियन करेंसी के ऊपर एक डायरेक्ट थ्रेट है बिटकॉइन, हर कंट्री पे, हर डॉलर पे एक डायरेक्ट थ्रेट है बिटकॉइन, राइट। अगर मैं इतने आसानी से भेज पाऊँ तो डॉलर कैसे प्रिंट होंगे? वही तो अभी उन्होंने स्टेबल कॉइन्स के आपने देखे होंगे 3 बिल्स साइन किए हुए हैं। So Abrar, next we have a quick rapid fire segment. Amazing. Right. Let's go. So let's start. One word or one line, whatever suits you, right? I'll try my best. Yeah. Bitcoin or Ethereum for the next 10 years? 1000% Bitcoin. Cool. If not crypto, what would you be building today? AI. Okay, Yeah. that's cool. One word that describes the Indian Web3 ecosystem. अभी के लिए Yeah. scams. Okay. Most underrated altcoin right now. Underrated altcoin right now. यार मुझे टॉन पसंद है। Okay. टॉन। Right. No financial advice because it's only Bitcoin for me. Ton, I love it because I am a big fan of Telegram. Okay. The way they have built it. Okay. If you can do, in short line, if I had to say, read the history of Telegram. The way they have done it. It's the only secure social media platform as of today, where people can, you don't have to do KYC, no phone numbers, nothing. So they are exactly working on decentralization. तो टॉन भी दी ओपन नेटवर्क बोला जाता है, पहले उसका टेलीग्राम ओपन नेटवर्क था। सो इट हैज़ द सेम माइंडसेट। अभी वो ग्रो नहीं हुआ है, बट मुझे लगता है फ्यूचर उसका काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि वो सेम माइंडसेट पे और सेम प्रोटोकॉल, सेम इकोसिस्टम पे काम करना चाहता है। Right. Okay, a most overhyped buzzword in the Web3. बज़वर्ड, Right. ऑल्ट कॉइन सीजन। Okay. पता नहीं ये कहाँ से किस्सा शुरू हो गया है, वो एक हिस्ट्री लेके चुप चलते रहता है। ऑल्ट कॉइन सीजन आने वाला है, ऑल्ट कॉइन सीजन आने वाला है, ये पंप होने वाला है। वो एक इन्फ्लुएंसर्स होता है ना, अभी ऑल्ट कॉइन सीजन आ रहा है, ऑल्ट कॉइन सीजन आ रहा है। यार वी आर इन अ बुल रन, वी हैव बीन बुल रन। लुक एट दिस वे, वी आर रीच फ्रॉम $1 to 120,000 $120,000। वो शॉर्ट टर्म का होता है कि आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है कि जा रहा है। लॉन्ग टर्म में अगले 40 साल भी हम बुल रन में ही हैं। लुक एट द बिग पिक्चर, जूम आउट लिटिल बिट, तो हम बुल रन में हैं, क्योंकि ऊपर ही जाएगा ना इवेंचुअली ये। True. A founder you admire or outside like Web3 as well? A founder I admire outside Web3. Nah, I can't say about Web3 के बाहर, Elon Musk. Okay. He's like, yeah, Elon Musk. Your favorite meme coin, just for fun? Bitcoin. Okay. There is no meme coin for me. There is no meme coin for me. I shouldn't be saying favorite coin, meme coin. Sorry. My favorite meme coin, just because there is a fun and aspect to it. Dogecoin, Okay. मैं बोलो, क्योंकि if you look at the irony, जो वो Dogecoin बनाया था, उसने he sold his all his Dogecoin Right. to buy Honda Civic.
Okay. He bought Honda Civic and he sold all his Dogecoin. एक meme coin से fun way से शुरू हुआ था वो डॉज के ना अपनी एक डॉगी की फोटो लगा के, और उसने बिट को सारे अपने Dogecoin बेच के होंडा सिविक लिया. एक टाइम पे Dogecoin का मार्केट कैप पूरे होंडा कंपनी से ज़्यादा था. Okay. होंडा कंपनी का मार्केट कैप $45 बिलियन है, उससे ज़्यादा था. लुक एट दिस आयरनी. ठीक है, तो आई नो दिस थिंग, बाय बिटकॉइन एंड दैट्स इट, सिंपल एज दैट. One thing Web3, like Web 2 did better than Web 3. Web 2 did better than Web 3? Yeah. I don't think so anything, because Web 2 it's gone. Web 3 you can consume, at the same time you can interact and you can hold. There's nothing, I think only thing I think Web 2 में education ज़्यादा था. Web 3 में अभी education कम है, but eventually वो हम cope up कर लेंगे. Right. Morning person or night owl? For me, Yeah. night out. Cool. Right, yeah. It's like that's how we reach to the end of this. Thank you so much. Thank you so much for being here. Thank you so much for this informative session. Like, you have provided much wisdom to this space. Thank you so much. And for like more such talks and everything for this crypto knowledge, you need to follow us and stay tuned with us with Token Talks by Altcoiners to have more wisdom in this space. Thank you so much and stay tuned. We are very thankful for you. Thank you to so be much for here. having me. If you Yeah. have any doubts, Right. comment down and Right. we will try. Our team will Okay. try Right. to answer any of your doubts. Right. You can reach out to us if you have any doubts, everything. Thank so you much for it. being here. Thank you. Thank you. Thank you.